Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the exercise of chapter 6, that is acids, alkalis and salts. Short questions. Define the following terms. Acid की definition आपको मिल जाएगी की points में 8.4 और 7. ये चीज को एक दफा देख लेते हैं हम. Key points are here. 8.4, 1, 2, 3, 4. An acid is a substance that forms hydrogen ions H plus when dissolved in water. ठीक है जी. इसके साथ एक पॉइंट आप और क्या ऐड करेंगे 5, 6, 7. An acid has sour taste, turns blue litmus red, corrode most metals and react with carbonates to give carbon dioxide. Next definition is alkali. ये की पॉइंट 5 plus 8. की पॉइंट 5 को देख लेते हैं. की पॉइंट्स आर वेरी गुड फॉर डेफिनेशंस, लेकिन बाज औकात की पॉइंट इनफ नहीं होता. एक की पॉइंट दो को मिलाना पड़ जाता है. ये देखें 1, 2, 3, 4, 5. A base is a substance that forms hydroxide ions OH minus when dissolved in water. When a base dissolves in water, the mixture is called alkali. Okay? ये क्वेश्चन क्या है? ये अल्कली बारे में पूछा गया है. बेसिकली अल्कली यहाँ डिफाइन हो जा रहा है, लेकिन अल्कली की थोड़े से पॉइंट्स आप ये नंबर 8 से अगर ऐड कर लें. एन अल्कली हैज अ बिटर टेस्ट. ठीक है, यानी 0.5 पूरा नहीं लिखना, पहली दो लाइनें, फिर उसके बाद नंबर 8 पॉइंट. एन अल्कली हैज अ बिटर टेस्ट, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, हैज अ सोपी फील एंड रिएक्ट्स विद अमोनियम सॉल्ट टू गिव ऑफ अमोनिया गैस. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट सॉल्ट. सॉल्ट की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी 3.6 से. 3.6 की तरफ चलते हैं. ओके, तो की 0.6 is a substance formed by neutralization reaction of an acid with a base is called salt. A salt is also formed when acid reacts with a metal or a carbonate. Okay जी. Next definition is about neutral substances. Neutral substances की ये definition अगर मतलब बिल्कुल proper exact मुझे मिली थी चैप्टर में से. Substances which are neither acidic nor basic are called neutral substances. For example, water and salts. These substances are produced by neutralization reaction. Okay? ये definition simple है, easy है, ये आप लिख सकते हैं. ऐसे मिलती जुलती कोई और भी. Next definition is about indicators. Indicators की point 13. Okay जी, point 13 पे आके देख लेते हैं. This is key point 13. Substances which change color when treated with acidic or basic solutions are called indicators. Some common indicators are litmus, methyl orange, phenolphthalein, and universal indicator. Next definition is natural indicator. Natural indicators का की बेहतर मतलब टॉपिक में भी ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. चीज को सही लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वैसे गलत लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. The pH indicators obtained from natural sources like flowers and vegetables are called natural indicators. For example, China rose, turmeric, etc. Okay, the next definition is about universal indicator. Universal indicator page number 130 key point 2. Page number 130 पे जाते हैं. Key point page 130 पे कुछ key points हैं, कुछ 129 पे की 130 पे जो की point 2 है. The universal indicator shows a variety of color depending on the acidity or alkalinity of the solution to be tested. ठीक है जी, ये universal indicator की simple सी definition. Next definition is about pH. pH की definition की page number 130 पे है 0.3. Again we move towards page number 130 और इसमें देखें 3.3 है. Indicate the strength of acids and alkalis. There is a scale of numbers called pH. pH of a substance is used to measure, यहाँ पे होना चाहिए, used to measure how acidic or how alkaline a substance is. If a solution is very acidic, the pH is low, but if a solution is very alkaline, the pH is very high. Okay जी, ये definitions complete हो गई हैं. Now we move toward question number 3. Can you name an acid used in car batteries?
कार बैटरीज में जो एसिड यूज होता है उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। आपकी बुक में इसका नाम है स्टोरेज बैटरी, कार बैटरी, ट्रक बैटरी, इट्स द सेम थिंग। ठीक है जी। एन अल्कली टू अनक्लॉग ड्रेन्स, जब गटर की पाइपलाइनें बंद हो जाती हैं जो केमिकल मंगवाते हैं हम, वैसे तो आम उर्दू में कहते हैं तेजाब की बोतल, बेसिकली वो तेजाब नहीं होता, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि यूज किया जाता है टू ओपन द ड्रेन्स। ठीक है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी इज अ सॉल्ट यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड, सॉल्ट का नाम है सोडियम बेंजोएट। Question number 4. Predict what you will see when a piece of red litmus paper is dipped into each of the following solution. अब अगर आपको चैप्टर में से याद हो, रेड लिटमस को जब अल्कली में डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है, ब्लू लिटमस को जब एसिड में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। अब रेड लिटमस को अगर एसिड में डालेंगे, अगर आपको याद हो क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि रेड लिटमस को जब एसिड में डालते हैं तो वो रेड ही रहता है। इस तरह रेड लिटमस को जब न्यूट्रल सोल्यूशन में डाला जाए, वाटर में या सॉल्ट सोल्यूशन में, तब भी वो रेड ही रहता है। तो यहाँ पे जितने भी एसिड होंगे और जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस होंगे, सॉल्ट वगैरह, उसमें हम रेड को रेड ही मेंशन करेंगे, और सिर्फ जो अल्कली सोल्यूशन होगा उसमें हम बताएंगे कि वो ब्लू हो गया। सो सिट्रिक एसिड में रेड, पोटाशियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट। एसिड क्योंकि नाम में एसिड यहाँ पे इस लिस्ट में दो हैं, वो नाम से ही पहचाने जा रहे हैं, दोनों एसिड में वो रेड रहेगा। ठीक है जी। सॉल्ट भी इस लिस्ट में दो हैं। सॉल्ट का नाम पहचानने का क्या तरीका होता है, अमूमन उसके आखिर में हाइड्रोक्साइड नहीं होता। ठीक है, और दो डिफरेंट आयंस आपस में रिएक्ट करके, जैसे सोडियम और क्लोराइड, पोटाशियम और नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड में भी वो रेड रहेगा, सोडियम क्लोराइड में भी वो रेड रहेगा। अमोनिया इज बेसिकली एन अल्कली, इसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अल्कली, इसमें रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। ये जी, ज्यादातर जो अल्कलीज हैं उन सब के आखिर में हाइड्रोक्साइड आता है। अमोनिया एक ऐसा आपकी बुक में है एग्जाम्पल के तौर पे जिसके आखिर में हाइड्रोक्साइड नहीं आता। सो ये दो इस लिस्ट में अल्कलीज हैं, इसलिए इनका कलर ब्लू हो जाएगा जब इसको रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप किया जाएगा। नाउ वी कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. नेम 3 कॉमन एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एसिड एंड नेचुरल एसिड। ठीक है जी, अगर डिफरेंस का पॉइंट आए तो कोशिश करना है कि उसके 3 डिफरेंसेस लिखने। नेचुरल एसिड, एसिड फाउंड इन फूड एंड लिविंग मटेरियल। एक मिनट, आपको ये सही नजर नहीं आ रहा होगा। ओके, नेचुरल एसिड, एसिड फाउंड इन फूड एंड लिविंग मटेरियल, आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड फाउंड इन लेमन। और मिनरल एसिड का फर्स्ट पॉइंट, एसिड डिराइव्ड फ्रॉम रॉक्स और मिनरल्स। Number 2 point, also called inorganic acid. Number 3 point, for example, hydrochloric acid. ठीक है जी, ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में लिखे हुए हैं, इनको सिर्फ मैंने इस तरह कर दिया। आप सिंपली ये कीजिएगा, बीच में लाइन लगा के एक तरफ मिनरल एसिड की हेडिंग दीजिएगा, एक तरफ नेचुरल एसिड की हेडिंग दीजिएगा। 3 पॉइंट मिनरल एसिड के नीचे, 3 पॉइंट नेचुरल एसिड के नीचे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7. वाई ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। इसका आंसर है पेज नंबर 113 पे। तो जी, क्वेश्चन का आंसर आप यहां से शुरू करेंगे। पहले इस बॉक्स को लिखेंगे, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयंस minus when dissolved in water. When a base dissolves in water, the mixture is called alkali. पहले ये पैराग्राफ, ये बॉक्स लिख के अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे जितने भी बगैर हेडिंग वाले बॉक्सेस हैं, ये उस टॉपिक की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, इनको जरूर करना है। और क्वेश्चन आए तो पहले इसी का लिखना है, इसी को बॉक्स को लिखना है। फिर ये 3-4 लाइनें लिखने के बाद ये पॉइंट लिखना है। मेनी बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जाम्पल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। 3 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 2 याद कर लें, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नेम इज एनफ। All hydroxides are bases and only water soluble bases are alkalis. Therefore, all alkalis are bases but all bases are not alkalis. हर वो चीज जो कि हाइड्रोक्साइड आयन दे सके वो बेस है, लेकिन बेस की एक कैटेगरी है अल्कली। जब बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो उसको अल्कली कहते हैं। लेकिन कुछ बेसेस ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। These are bases but not alkalis. ठीक है जी, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8. राइट द नेम्स ऑफ 3 alkalis
सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे कॉमन अल्कलीज हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बस सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम आपको नाम याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ 2 बेसिस दैट आर नॉट अल्कली। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने किया, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो की पॉइंट 9 और पेज नंबर 113 से अटेम्प्ट करेंगे। पॉइंट 9 पे पहले आके देखते हैं। This is key point 9. Reaction between an acid and an alkali with the formation of salt and water is called neutralization reaction. उसकी पॉइंट के बाद आप ये लिखेंगे पेज नंबर 113 से, during a neutralization reaction the hydrogen in an acid is replaced by a metal. The hydrogen ion and hydroxide ion join together to form water. The remaining reactants form a salt. For example, ये example आप एक equation लिखेंगे, NaOH plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O. NaOH के नीचे लिखेंगे बेस, HCl के नीचे लिखेंगे एसिड और NaCl के नीचे लिखेंगे सॉल्ट। और ये तो आपको पता ही है कि ये वाटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। अब ये जो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस है, यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इसका सेम आंसर है। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस में आपने एक ही आंसर लिखना है, जो पहले की पॉइंट 9 और फिर उसके बाद नंबर 113 का पैराग्राफ और एक इक्वेशन अभी मैंने आपको बताई है। ओके जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, हु इज सोरेनसन। इसका आंसर है पेज नंबर 122 पे। क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ से। Universal indicator is a mixture of indicators. It is different from other indicators because it can show a variety of colors depending on the acidity and alkalinity of the solution to be tested. Instead of using a scale of colors to indicate the strength of acids and alkali, we can use a scale of numbers. The scale of numbers was suggested in 1909 by Danish biochemist Søren Sørensen to measure how acidic or alkaline a solution is. इसके साथ आप अगर ये वाली डायग्राम बना लें तो अच्छा है। थोड़े से इसके कलर्स अगर आप याद रखें, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर के लिहाज से न्यूट्रल जो है वो ग्रीन कलर से शो होता है, वीक अल्कलीज ब्लू से और स्ट्रॉन्ग अल्कलीज पर्पल से। ये डिफरेंट कलर रेंज है। और येलो ऑरेंज जो है ये एसिड स्ट्रेंथ को शो कर रहे होते हैं और रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को शो करता है। ठीक है जी। Next question is list 3 uses of acids, alkalis, salts. एसिड्स के यूजेस पेज नंबर 119 और 120 पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, इसमें से जो 3 आपको आसान लगे वो याद कर लें। अल्कलीज के यूजेस पेज नंबर 120 पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई 3 जो आपको आसान लगते हैं वो कर लें। सॉल्ट्स के यूजेस पेज नंबर 121 पे लिखे हुए हैं, उसमें से जो 3 आपको आसान लगते हैं वो आप कर लें। ठीक है जी। Then question number 14 is what color would universal indicator be? अभी हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की डायग्राम की बात की थी जो कि पेज नंबर 123 पे है। उन कलर्स को थोड़ा सा आप देख लें। देखें, इसके 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इससे ज्यादा भी दिए जा सकते हैं। वीक अल्कली का कलर क्या है, ब्लू, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर क्या है, रेड। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज पीएच पेपर, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच पेपर की प्रॉपर डेफिनेशन मुझे बुक में से नहीं मिली। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, आप चाहें तो नेट से या किसी और जगह से कोई और भी इजी डेफिनेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। pH paper are pieces of paper that change color depending on the pH. ब्रैकेट में लिख सकते हैं the acidity or salinity of a liquid. pH paper is a cheap and easy way of measuring pH of any liquid. ठीक है जी। pH paper जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए बनता है और वो डिफरेंट pH रेंज देता है। ऐसा पेपर होता है जिसको जब डिप करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस में तो उसका कलर चेंज होता है। न्यूट्रल में ग्रीन होता है अमूमन, और स्ट्रॉन्ग एसिड में रेड होता है, और स्ट्रॉन्ग अल्कली में पर्पल होता है। मैंने आपको क्लास में दिखाया था। व्हाट इज रेंज ऑफ पीएच स्केल, 0 to 14। आपकी बुक में कहीं कहीं 1 to 14 लिखा हुआ है, वो एक बहुत पुराना पीएच स्केल था। अब इंटरनेशनली आप कहीं भी देखेंगे तो 0 to 14 है। इस बुक में मिस प्रिंटिंग है कि 1 to 14 किसी किसी जगह लिखा हुआ है, 0 to 14 भी लिखा हुआ है, 1 to 14 भी लिखा है, बट द करेक्ट रेंज इज 0 to 14।
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डू वी यूज पीएच स्केल? इसका आंसर की पॉइंट 3 पेज 130 और पेज 123 के ऊपर है। की पॉइंट 3 पेज 130 पे देख लेते हैं। पेज 130 पे 3, to indicate the strength of acids and alkalis there is a scale of numbers called pH. pH of a substance is measured, ये point हमने पहले is used to measure how acidic, यहाँ पे used to add करना पड़ेगा, how acidic or how alkaline a substance is. If a solution is very acidic the pH is low, but if a solution is very alkaline the pH is very high. ये लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर 123 का ये टॉप पैराग्राफ, substance with a pH 7 is neutral. Pure water has a pH of 7. A chemical with a pH greater than 7 is called an alkali. Higher the pH, the more alkaline the chemical is. An alkali with a pH of 14 is much stronger than an alkali with pH of 9. इससे पहले भी यानी ये 2-3 लाइनें चाहिए क्योंकि एसिडिक की बात नहीं हुई। The lower the pH number, the stronger is the acid. The higher the pH number, the weaker is the acid. इसके बाद ना इस वाले पॉइंट के बाद ये वाला बॉक्स अगर आप लिख दें ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। अगेन ये बात इधर डायग्राम से अच्छी समझ में आ रही है। H7 जो है वो न्यूट्रल है, इससे जितना कम की तरफ जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पे 0 होना चाहिए था। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है उसकी pH 0 होती है और 7 से जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो अल्कली की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। 8-9 वीक अल्कली हैं, 4-5-6 वीक एसिड है। ठीक है, जितना दूर 7 यानी मिडिल पॉइंट है, बैलेंस का पॉइंट है, न्यूट्रल है, इससे जितना दूर जाएंगे इधर उतना एसिडिक, इतना जितना दूर जाएंगे इधर उतना अल्कली। ठीक है जी, इसी बात को आप अपने जुमलों में जिस तरह लिखना चाहें लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडिकेटर एंड अ पीएच स्केल? इंडिकेटर की पॉइंट 13 जो डेफिनेशन में भी हमने यूज किया था और पीएच स्केल अभी जो हमने की पॉइंट 3 ऑन पेज 130, इन दोनों को डिफाइन आप कर देंगे। ठीक है जी, ये कई दफ़ा हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। बस आप पहले इंडिकेटर की हेडिंग देंगे और की पॉइंट 13 उसमें लिखेंगे और फिर पीएच स्केल की हेडिंग देंगे और उसमें की पॉइंट 3 ऑन पेज नंबर 130 लिखेंगे। दैट इज गोइंग टू बी एनफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ नेचुरल इंडिकेटर? नेम 3 वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम व्हिच नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड। ये आपने पेज नंबर 125 से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर यहाँ से, plant extracts which change their color in aqueous solution of acids or alkalis are used to identify acids and alkalis are called natural indicators. There are various indicators that we can make from colored vegetables, flowers, etc. For example, beetroot, red cabbage, rose petals, china rose, and turmeric, etc. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो। Now we come towards long questions. Describe the properties of acids, alkalis, and salts. Acid की properties पेज नंबर 115 से 117 पे हैं। alkalis की properties पेज नंबर 117 पे हैं। salts की properties पेज नंबर 119 पे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की हेडिंग यहाँ से शुरू हो रही है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, एसिड हैव सार टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, बॉक्सेस को बीच में नहीं लिखना इस क्वेश्चन के। नंबर 2, एन एसिड इन वाटर चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये नंबर 2 है। नंबर 3 नेक्स्ट पेज पे है, पेज नंबर 116 पे, एसिड्स कोरोड मोस्ट मेटल्स, ये लिखना है और साथ इसके ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है जी, पॉइंट 3 हो गया। पॉइंट 4 जो है वो फिर नेक्स्ट पेज पे है। 4 प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की। ठीक है, दिस इज 4th प्रॉपर्टी, एसिडिक सब्सटेंस रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, ये इक्वेशन साथ लिखनी है। इक्वेशन साथ लिखनी जरूरी है, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते इस क्वेश्चन के। फिर जो इसका बी पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज, ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर, सॉरी मैंने ख्याल में मैंने पेज नंबर गलत बताया, नंबर 119 पे है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स और ये 1 2 3 4 5 7 प्रॉपर्टीज हैं इकट्ठी। ठीक है जी, इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यूजेस ऑफ एसिड्स, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स का है। यूजेस ऑफ एसिड्स भी नंबर 119 पे शुरू हो रहा है। अब देखें काफी सारे यूजेस हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3, नाइट्रिक एसिड के 3, सल्फ्यूरिक एसिड के 2, फिर इसके अलावा भी, मतलब आप इनके ना एक एक भी कर लें। नाइट्रिक एसिड का एक यूज कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक यूज कर लें, सल्फ्यूरिक एसिड का 7 पॉइंट्स एसिड्स के पूरे कर लें। ठीक है, इधर जो यूज ऑफ अल्कलीज के 6 पॉइंट्स हैं ऑन पेज नंबर 120 और नेक्स्ट पेज नंबर 121 पे यूजेस ऑफ सॉल्ट्स के 10 पॉइंट्स हैं। इनको आप शॉर्ट थोड़ा कर सकते हैं और जैसे एलम के बाद ब्रैकेट में एक लंबा सा नाम लिखा हुआ है, आप बेशक इसको ना करें। एलम इज यूज्ड इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर।
एक यूज कर लें। मतलब अगर आपको ज्यादा मुश्किल लगता है, अच्छे बच्चे तो पूरा याद करें, और जिन लोगों को मतलब बच्चों को एट अ टाइम इतने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं याद रहते, कम से कम हर एक का एक पॉइंट याद कर लें। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में भी यूज हो रहा है, गन पाउडर में भी यूज हो रहा है, मैच स्टिक में। इन तीनों में से जो वर्ड आपको आसान लगता है वो आप पोटेशियम नाइट्रेट के लिए याद कर लें। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो फूड में यूज होता है ये लिख दें। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन फूड। इसमें से मेन आप वर्ड सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। सो इन दिस वे आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके याद कर सकते हैं। 7 पॉइंट्स लेकिन आपको, सॉरी इसके 10 पॉइंट्स लेकिन आपको पूरे करने पड़ेंगे। okay, ये हमने पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, प्रॉपर्टीज और यूजेस। Then question number 21, how will you identify acids, alkalis and neutral substances by using indicators? इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 121 और पेज नंबर 122 पे। नंबर 121 पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडिकेटर्स। ठीक है, ये वाला बॉक्स भी लिखेंगे, फिर ये लिटमस पेपर के नीचे जो है ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं यहाँ, ये भी बॉक्सेस नहीं आएंगे, ये वाला बॉक्स नहीं आएगा, पिछला वाला बॉक्स आएगा। मैंने आपको बताया बगैर हेडिंग के जो बॉक्स है बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिड यू नो वाला बॉक्स नहीं आएगा, ये सारी लाइंस आएंगी और उसके साथ ये डायग्राम आएगी। देखें ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको जब एसिड में डिप किया गया, ये वाला हिस्सा डिप किया गया, ये रेड हो गया। ये रेड लिटमस पेपर है, और इसको जब बेस में देखें अल्कली में डिप किया गया, ये वाला हिस्सा डिप किया गया, तो ये ब्लू हो गया। ठीक है जी, ये सारी बात इन पैराग्राफ्स में लिखी हुई है। नंबर 121 पे यहाँ से स्टार्ट करना है आपने इंडिकेटर्स, 4 लाइनें, ये वाला बॉक्स, और फिर लिटमस पेपर के नीचे ये 3 लाइंस, और नेक्स्ट पेज के ऊपर ये 5-6 लाइंस, साथ ये डायग्राम। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट द कलर चेंजेस इन द नेचुरल इंडिकेटर्स बाय एडिंग एसिड्स एंड सॉल्ट्स। इसका आंसर पेज नंबर 125 पे है। पेज नंबर 125 पे आप इस हेडिंग से स्टार्ट करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे, फिर चाइना रोज की हेडिंग देंगे, की 2 लाइनें लिखेंगे, फिर टर्मेरिक जूस की हेडिंग देंगे, ये पॉइंट्स लिखेंगे, फिर रेड कैबेज की हेडिंग देंगे और ये लिखेंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, हाउ द इंडिकेटर फ्रॉम रेड कैबेज इज एक्सट्रैक्टेड, how it shows the presence of an acid or an alkali, how a pH paper is made using red cabbage extraction। इसका आंसर पेज नंबर 126 और पेज नंबर 127 पे 2 एक्टिविटी बॉक्सेस हैं, एक्टिविटी बॉक्स नंबर 6.5 एंड 6.6। ये देखें एक्टिविटी 6.5, इसका मटेरियल और प्रोसीजर लिखेंगे, डायग्राम बनाने की नहीं ज़रूरत। और फिर एक्टिविटी 6.6, इसके में हेडिंग देंगे, इसका मटेरियल लिखेंगे, इसका प्रोसीजर लिखेंगे, और ये डायग्राम आप बना सकते हैं, इट्स पॉसिबल। जो बनाना चाहें वो बना लें। ठीक है जी। और ये इसके नीचे क्वेश्चन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्व एंड एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे ये कलर्स आपने बता देने कि किसमें कौन से कलर आए हैं। क्वेश्चन के जो आंसर हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में करके यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर दें। Last question is why sour things, for example, pickle and vinegar, is not kept in metal pots। इसका आंसर जो है वो मैंने बुक में डायरेक्टली नहीं था, ये आप इस तरह लिख सकते हैं, किसी मतलब यही बात आप अपने वर्ड्स में किसी और तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। Sour things like pickle and vinegar are acidic in nature. Acids corrode most metals to form salts. That is why sour things are not kept in metal pots. It is better to put sour things in glass jars. So that's all about the exercise of chapter number 6 for class 8.